Hello, friends. You are most welcome in आयुष एकेडमी जौनपुर। आप सबका आयुष एकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे विलियम कांग्रीव का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड। इस प्ले में दिस प्ले कंटेन्स 5 एक्ट। यह प्ले 5 एक्ट्स का है। मोस्टली यू कैन फाइंड द प्ले नियरली 5 एक्ट्स। ज़्यादातर प्ले 5 एक्ट्स के होते हैं। इफ यू आर गोइंग टू अटेंड द फेमस प्ले ऑफ चार्ल्स बर्नर्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन, there you can find only 3 acts. आर्म्स एंड मैन यदि आप पढ़ने जाते हैं, you can find 3 acts. And Arms and the Man is anti-romantic comedy. This is very famous play of George Bernard Shaw. But we are not going to attend George Bernard Shaw. We are going to attend William Congreve, The Way of the World. The Way of the World is in the syllabus of BA second year. BA second year में The Way of the World पढ़ाया जाता है और आयुष एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस रन कर रही हैं, जिसमें द वे ऑफ द वर्ल्ड पढ़ाया जा रहा है। और जो इच्छुक विद्यार्थी हों वे ऑफलाइन भी क्लास अटेंड कर सकते हैं और ऑनलाइन भी। दोनों सुविधाएं आपके लिए आयुष एकेडमी में उपलब्ध है। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। दिस प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय विलियम कांग्रीव। विलियम कांग्रीव इज वन ऑफ द फेमस ड्रामाटिस्ट of his time. He wrote many dramas, many plays, but this is one of the best plays of William Congreve. In this play, there are several characters. You can see each and every characters on the screen. I am going to describe the character one by one. Here, the first and important character is मिराबेल। इस नाटक का जो पहला जो कैरेक्टर है वो मिराबेल है। मिराबेल इज वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस प्ले मूव्स अराउंड मिराबेल एंड एक्चुअली ही इज द हीरो ऑफ दिस प्ले। मिराबेल इस प्ले का हीरो है। Now second character is Mrs. Millamant. Mrs. Millamant is the beloved of Mirabel. Next character is Mr. Fennel. Mr. Fennel is the husband of Mrs. Fennel, and Mrs. Fennel is the wife of Mr. Fennel. Now next character is Lady Wisport. Lady Wisport is one of the very important characters of this play and she is in leading role. Lady Wisport leading role में है। She is one of the wealthy lady and the next character is Foible. Foible is the maid of Lady Wisport. Foible Lady Wisport की नौकरानी है and the next character is Mincing. मिंसिंग इज द अटेंडेंट आर मेड ऑफ मिलामेंट। मिंसिंग जो है मिलामेंट की अटेंडेंट है। बेटी इज द अटेंडेंट ऑफ चॉकलेट हाउस। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज सर विलफुल विटवुड। सर विलफुल विटवुड इज द half brother of Witwoud and
He is the son of Lady Wishfort's sister. Now next character is petulant. Petulant and Witwoud both are the attendants of Lady Wishfort. Now the last character is Wetwell. Wetwell is the servant of Mirabel. Wetwell attended each and every orders of Mirabel. Now the story begins from the chocolate house. यह कहानी चॉकलेट हाउस से शुरू होती है. इन दिस चॉकलेट हाउस देयर आर मेनी चैम्बर्स. चॉकलेट हाउस में ढेर सारे चैम्बर्स हैं. एंड बेटी इज द अटेंडेंट ऑफ चॉकलेट हाउस. इन दिस हाउस मिराबेल एंड मिस्टर फेनाल, मिराबेल एंड मिस्टर फेनाल बोथ आर प्लेइंग द कार्ड्स. यह नाटक चॉकलेट हाउस से शुरू होता है जहां मिराबेल और फेनाल दोनों कार्ड्स खेल रहे हैं. कार्ड्स पत्ता खेल रहे हैं. और जहां तक हम लोकल लैंग्वेज में जानते हैं, ताश को गांव में कहते हैं पत्ता खेलना. तो हियर मिस्टर फेनाल एंड मिराबेल बोथ आर प्लेइंग कार्ड्स. व्हेन मिराबेल इज एन एक्सपर्ट कार्ड्स प्लेयर, but he was defeated by Mr. Fenal again and again. When he was defeated by Mr. Fenal again and again, then Mr. Fenal said that Mirabel, why are you not playing this game with interest? तुम इस खेल को इंटरेस्ट के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? Mirabel said that I have no interest in such a game. I am playing only. Then he asked the reason. What is the reason so that you are not playing this game as well as you used to play? Then Mirabel told that he was insulted by Lady Wishfort in her club, because when it was the cabal night, then most of the ladies gathered there in the club of Lady Wishfort. Lady Wishfort के क्लब में ढेर सारे मेंबर्स इकट्ठे हैं. But Lady Wishfort made the members of the club the female only. But for the validity of the club, one or two male members are essential. That is why they appointed Petulant and Witwoud as a member there. Petulant and Witwoud, they were there among the women, and both were only the male, only by name. पेटुलेंट एंड विटवुड जो मेंबर है वहाँ के, ये केवल नाम के मेंबर हैं. ये नाम के पुरुष हैं. स्त्रियों के बीच इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर क्या था, क्योंकि ये स्त्रियों के बीच जब सहभागिता निभाते हैं तो ये स्त्री ही बन जाते हैं. तो लेडी विस्फोट को अपने बचाव के लिए पुरुष मेंबर्स जो रखने थे, तीनों ने पेटुलेंट और विटवुड को रख दिया ताकि इनके क्लब पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह न उठे. दैट डे Mirabel also reached in the club of Lady Wishfort. In that club, Mirabel was insulted by Lady Wishfort. At that time, the beloved of Mirabel, she was Mrs. Millamant. She heard all the conversation which going on there between Mirabel and Lady Wishfort. But what a pity, she did not oppose and she did not take care of her lover Mirabel. लेडी विस्फोट जब मिराबेल का अपमान कर रही थी, उस समय उनकी प्रेमिका मिलामेंट वहां मौजूद थी. मिलामेंट वाज द नीस ऑफ लेडी विस्फोट. शी डिड नॉट अपोज्ड हर, यानी मिलामेंट ने उनका कोई विरोध नहीं किया. देन मिस्टर मिराबेल, ही वाज इंसल्टेड, ही वाज डिमोरलाइज्ड. लेटर ऑन ही रिटर्न फ्रॉम देयर एंड ही वेंट टू द चॉकलेट हाउस एंड ही वाज प्लेइंग द कार्ड्स. But he was not interested in such a game like that. He was defeated by Mr. Fenal again and again. From there, from the chocolate house, they went into the park. वहाँ से दोनों Mirabel and Mr. Fenal went to the park. दोनों पार्क में जाते हैं. They were talking something. After that, Mrs. Fenal and Mrs. Marwood reached there. वहाँ पर Mrs. Fenal और मारवुड आती है. मिसेस फेनाल एंड मारवुड.
I have not mentioned the character of Mrs. Marwood. She is also very important character of this play because she had also played some important role and she is the turning point of this play, The Way of the Word. ये द वे ऑफ द वर्ड की टर्निंग पॉइंट है। ये भी वहाँ पहुँचती हैं। मिसेस फेनाल एंड मिलामेंट रीच देयर। मिसेस फेनाल और मिलामेंट वहाँ पहुँचती हैं। मिसेस फेनाल एंड मिलामेंट दे वर टॉकिंग टुगेदर बट दे वर टॉकिंग अबाउट द मेन। बोथ वर stating that they don't like the male or the men. मिसेस मारवुड और मिसेस फेनाल दोनों पुरुषों से नफरत करती हैं। दोनों का यही कहना है। दोनों एक जगह खड़ी होकर के बातें कर रही हैं। उसी बीच मिराबेल और फेनाल उनके पास पहुंचते हैं। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो मिसेस फेनाल सेड टू मिराबेल, आई हैव टू टॉक सम स्पेशल टू यू। मुझे आपसे कुछ विशेष बातें करनी है, चलिए हम यहाँ से दूर चलते हैं। फिर क्या होता है, व्हेन मिसेस फेनाल और एंड मिराबेल went away from there, then Mrs. Marwood and Mr. Fennell, they were there at that moment. Mrs. Marwood and Mr. Fennell were lover and velvet. यानी कि मिसेस मारवुड जो थी वह मिस्टर फेनाल की प्रेमिका थी और मिस्टर फेनाल मिसेस फेनाल के पति थे। Then both the lover and velvet started talking. Then Mrs. Marwood said that, do you know, your wife had some bad relation with Mirabel. Then Mr. Fennell said that, I know. I know. When I got married with her, then she was pregnant. But I am not her faithful husband and she was not my faithful wife. I have got marriage with her only for the sake of money. मैंने मिसेस फेनाल से उनके पति के मरने के बाद मैंने उनसे जो विवाह किया केवल संपत्ति के लिए किया। बट एक्चुअली यू आर माई वेलवेट, तुम मेरी प्रेयसी हो। जब मैं मिसेस फेनाल की संपत्ति को प्राप्त कर लूँगा तब हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। मैं अपनी पत्नी को भिखारी बनाकर छोड़ूंगा। दैट वॉज द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर फेनाल हियर। ये रहा मिस्टर फेनाल का स्टेटमेंट। फिर क्या था, इसी बीच both Mrs. Marwood and Mr. Fennell were quarrel to each other. दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं। The lover blamed on velvet and the velvet blamed on lover. दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। Mrs. Marwood started crying. Mrs. Marwood वहाँ रोने लगती हैं। रोते रोते वह बहुत परेशान हो जाती हैं। उसी बीच Mirabel and Mrs. Fennell returned. Then Mr. Fennell said that, wipe your eyes, otherwise they could see you that you are crying. Then Mrs. Marwood did so. Mrs. Marwood ने ऐसा किया। But here is another story beside the curtain, behind the curtain. It was that Mirabel ordered Foible, the maid servant of Lady Wisport, and his own servant Vetwell, you both go to the church and got married. लेडी विस्फोट की नौकरानी फाइबिल को मिराबेल ने कहा कि तुम मेरे नौकर वेटवेल्स के साथ जाओ और चर्च में शादी कर लो। चर्च में शादी करके जल्दी ही आना। तुम ही एक हो जो मेरी प्लान को आगे बढ़ा सकती हो, क्योंकि मेरी प्लान तुमसे ज़्यादा बेटर कोई और कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लेडी विस्फोट की नौकरानी हो, सबसे विश्वस्त हो और तुम चाहोगी तो मेरा प्लान सफल हो जाएगा। तो फिर क्या था, फाइबिल एंड वेटवेल वेंट टू द चर्च। व्हेन दे वेंट टू द चर्च फॉर मैरिज इन फ्रंट ऑफ द प्रीस्ट, जब वो पादरी के पास विवाह करने के लिए जाते हैं तो जाने के बाद दे फाउंड अ लॉन्ग क्यू देयर, उन्होंने एक लंबी कतार देखी और पादरी जो लंबी कतार में था वह ईसा मसीह के उपदेशों को पढ़ते पढ़ते विवाह के समय गाए जाने वाले शाम को बोलते बोलते उसकी जुबान बिल्कुल रुक सी गई थी। वह बहुत परेशान था। इसलिए फाइबिल और वेटवेल को लगा कि यहाँ उनका विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उनका क्रम आते आते शाम हो जाएगी। दैट इज वाई दे वेंट अवे फ्रॉम देयर, इसलिए वहाँ से वो चले जाते हैं। दे वेंट टू अनदर चर्च। व्हेन दे वेंट देयर
Then in that church the priest was quite free and there was not a long queue, so that their marriage had been settled there very shortly. फॉयबिल और वेटवेल का विवाह बड़े शीघ्र ही हो जाता है। फिर क्या था, लेडी विस्फोर्ट एंड मिराबेल हैड सम lovable relation in the beginning. Lady Beresford was just the age of 55. In spite of this, being an old, she wanted to marry with the quite young man like Mirabel. लेडी बिस्फोर्ड मिराबेल जैसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उनका रोमांस कुछ दिन तक चला। लेकिन लेडी बिस्फोर्ड को ये नहीं पता चला कि मिराबेल मेरे लिए नहीं बल्कि वह मेरी भतीजी मिसेस मिलामेंट के लिए आता है। फिर क्या था, लेडी बिस्फोर्ड स्टार्टेड टू हेटिंग हिम। लेडी बिस्फोर्ड मिराबेल से नफरत करने लगी, उनकी नफरत परवान चढ़ने लगी, वह उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने कैवाल नाइट में उसका अपमान किया। फिर क्या था, व्हेन द मैरिज ऑफ फॉयबिल एंड वेटवेल वाज सोलोमनाइज्ड, जब फॉयबिल और वेटवेल का विवाह संपन्न हो गया, फॉयबिल केम फास्ट बाय रनिंग टू मीट मिस्टर मिराबेल इन द पार्क। फॉयबिल भागते भागते मिराबेल से मिलने के लिए आती है एंड फॉयबिल सेड दैट आई हैव सेटल्ड आवर मैरिज, व्हाट योर नेक्स्ट ऑर्डर, आपका अगला आदेश क्या है, आप मुझे बताएं जिससे कि हम अगले आदेश के अनुरूप कार्य कर सकें। देन वेटवेल आल्सो रीच्ड देयर। मिराबेल सेड दैट if you will make my plan successful, I will give you a handsome reward. Then Whitwell said that what would be found I myself. उसने कहा मुझे क्या मिलेगा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। Then he said you can find nothing, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम तो मेरे नौकर हो, तुम्हारा विवाह ही हो गया, क्या कम है, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर क्या था, उसने कहा जाओ और मेरी योजना को तत्काल पूरा करो, मेरी योजना को तत्काल अमल में लाओ, अन्यथा तुम्हारे लिए कतई ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, बोथ वेंट देयर। जैसे ही फॉयबिल वहां से जाना चाहती हैं, मिसेज मारूड वाज पासिंग दैट पार्क दैट वे, उस पार्क से मिसेज मारूड गुजर रही होती हैं। मिसेज मारूड वाज वियरिंग द मास्क एंड शी saw that फॉयबिल was talking something with Mirabel. Then she suspected about the behavior of Foible. Then Mrs. Marwood, who was the close friend of Lady Beresford, she went very fast to Lady Beresford. फिर क्या था, मिसेज मारूड बड़ी तेजी से लेडी बिस्फोर्ड के पास जाती हैं। लेडी बिस्फोर्ड वाज सिटिंग इन हर टॉयलेट। टॉयलेट मीन्स रूम फॉर सिटिंग फॉर डूइंग द मेकअप, दिस इज नोन एज टॉयलेट। टॉयलेट का अर्थ वो टॉयलेट नहीं जो आप समझते हैं। इंग्लैंड में टॉयलेट का अर्थ ये होता है जो एक बैठक का कमरा होता है जहाँ सौंदर्य प्रसाधन की ढेर सारी चीज़ें रखी होती हैं और ज़्यादातर महिलाएं उस सौंदर्य प्रसाधन कक्ष में बैठ करके स्वयं का मेकअप करती हैं। तो लेडी बिस्फोर्ड वाज सिटिंग इन हर टॉयलेट एंड हर सर्वेंट शी वाज अटेंडिंग, उनकी एक नौकरानी उन्हें अटेंड कर रही है। देन लेडी बिस्फोर्ड ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग अ पेंट so that she could paint her face. Why is this? Because Whitwell, who was Sir Roland, who was going to play the part of Sir Roland, and he was the uncle of Mirabel. यानी कि जो वेटवेल था, जो मिराबेल का नौकर था, वह सर रोलैंड की भूमिका कर रहा था और ऐसा इसलिए कर रहा था कि मिराबेल ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। एक तरफ वेटवेल मिराबेल का नौकर है, दूसरी तरफ वेटवेल सर रोलैंड की भूमिका करने जा रहा है और वह लेडी बिस्फोर्ड से विवाह करने जा रहा है। तो हियर व्हाट इज द कैरेक्टर रोल ऑफ फॉयबिल टुवर्ड्स सर रोलैंड एज वेल एज लेडी बिस्फोर्ड। तो मिराबेल ने फॉयबिल को क्यों चुना था, फॉयबिल का क्या कैरेक्टर रोल था, हमें ये देखना है। इसीलिए उसने अपने नौकर के साथ फॉयबिल का विवाह किया। इट वॉज ए टेम्पटेशन फॉर हर, यह फॉयबिल को उसने लालच दिया था कि मैं अपने नौकर से विवाह कराऊंगा, ये तुम मेरी योजनाओं को अमल में लाती हो। तो फॉयबिल का जो काम था वो ये था कि वह लेडी बिस्फोर्ड का मैसेज सर रोलैंड को दे, सर रोलैंड का मैसेज लेडी बिस्फोर्ड को दे। तो यहाँ पर जब उनकी नौकरानी लेडी बिस्फोर्ड की
पेंट नहीं ला पा रही है, लेडी विस्फोट बड़ी गुस्से में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉयबिल हैड लॉक्ड द पेंट इन द अदर रूम सो दैट शी कुड नॉट फाइंड, वह नहीं पा सकती थी। फिर क्या था, फॉयबिल के वहां पहुंचने से पहले लेडी विस्फोट बहुत गुस्से में है कि फॉयबिल कहाँ चली गई, फॉयबिल आती क्यों नहीं, मैं अगर नहीं तैयार हो पाई समय से तो सर रोलैंड को मैं क्या इम्प्रेस कर पाऊंगी, मेरा क्या इंप्रेशन उनके सामने रहेगा। इन सब बातों को देखते हुए लेडी विस्फोट बहुत नाराज थी। उसी बीच मिसेज मारूड पहुंच जाती हैं। मिसेज मारूड जब वहां जाती हैं तो उन्होंने कहा कि माय डियर फ्रेंड विस्फोट, आई हैड सीन दैट फॉयबिल वाज टॉकिंग इन द पार्क विथ मिराबेल, आई मीन टू से I suspected that, I thought that she was making a plan against you. तो मिसेज मारूड ने कहा कि मित्र, मुझे लगा कि फॉयबिल मिलामेंट से बात कर रही है तो कोई प्लान बना रही है, उसका प्लान तुम्हें चीट करने का है, लगता है कुछ दोनों के बीच चल रहा है। फिर क्या था, लेडी विस्फोट कहती हैं कि माय फ्रेंड मारूड, ठीक है आने दो उसे, लेट हर कम इन, उसे अंदर आने दो, आई विल सी हर, मैं उसे देख लूंगी। लेकिन अगर तुम इस खेल का आनंद लेना चाहती हो तो यू शुड हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द चिमनी, तुम चिमनी के पीछे छुप जाओ, देखो कैसा मजा आता है। फिर क्या था, मिसेज मारूड हाइड हर सेल्फ देयर, इन द मीन टाइम फॉयबिल केम देयर वेरी फास्टली एंड शी सेड दैट आई हैव कम, देन लेडी विस्फोट सेड दैट आई हैव हर्ड दैट यू आर टॉकिंग माई एनिमी मिराबेल, मैंने सुना कि तुम मेरे दुश्मन मिराबेल से बात कर रही थी, व्हाट इज द मैटर, यू आर स्कीमिंग अगेंस्ट मी, तुम मेरे विरुद्ध प्लान बना रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं। फिर क्या था, फॉयबिल सेड दैट यस आई वाज टॉकिंग देयर, मैं आ ही रही थी कि रास्ते में अचानक मिराबेल मुझसे मिल गया, एंड ही वाज अब्यूजिंग यू, ही कॉल्ड यू ओल्ड, वह आपको गालियां दे रहा था, बूढ़ी कह रहा था। ही आल्सो सेड दैट यू आर पास्ट योर एज फॉर द मैरिज, यू आर नॉट मैरिएजेबल, आप विवाह के योग्य नहीं हो, आप बूढ़ी हो चली हो, आप जो विवाह करने जा रही हो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी ऐसी बातें कही, इतना ही नहीं, मुझे तब बोलना पड़ा, मैं कुछ नहीं सहन कर पाई जब उसने आपको भद्दी भद्दी गालियाँ दी, उसने मुझे भी कुछ कहा, तो आई पेड द सेम कॉइन, आई पेड द सेम कॉइन मीन्स जो उसने मुझे जिस शब्दों में गाली दी मैंने वैसे उसे भी अपशब्द कहा। तो इस ऐसा करने के कारण मैं उससे बात कर रही थी, क्या मैंने कोई गलती की, मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं मिराबेल से पार्क में मिली थी, उससे बात कर रही थी। मिसेज मारूड वाज देयर एंड शी वाज लिसनिंग ऑल द कन्वर्सेशन विच गोइंग ऑन बिटवीन देम, जो कन्वर्सेशन वहाँ चल रहा था मिसेज मारूड वहाँ सुन रही थी। फिर क्या था, लेडी विस्फोट कहती मुझे देर हो रही है, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट रूम इन द अपर स्टोरी, आई विल ड्रेस देयर, मैं वहाँ कपड़े पहनूंगी। उसी बीच मिसेज मारूड वाज सिटिंग देयर एंड मिसेस फेनाल अपीयर्ड, उसी बीच मिसेस फेनाल आ जाती हैं। मिसेस फेनाल आ जाती है तो कहते हैं फॉयबिल क्या योजना आगे बढ़ी, देन फॉयबिल डिड नॉट नो दैट शी इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट प्लान ऑफ मिराबेल, वह मिराबेल की योजना का हिस्सा है, उसे नहीं पता था। फिर क्या था, मिसेस फेनाल सेड दैट आई नो ऑल, मुझे सब पता है, सारी स्कीम मुझे पता है, इसलिए मुझे बताओ। देन फॉयबिल सेड मुझसे पहले मिसेज मारूड चुड़ैल आ गई थी, द विच मिसेज मारूड हैड कम बिफोर मी एंड सी टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग अगेंस्ट मी, बट आई हैव ट्राइड द बेस्ट टू फुलफिल द लैक विच वॉज इन मी, जो कमी थी, जो कमी मेरे द्वारा की गई थी, मैंने उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश की, मैंने बात बना ली है। और मिसेज मारूड चुड़ैल को ये पता भी नहीं चलने दिया। फिर क्या था, मिसेज मारूड के हाथों बटेर लग गई, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाती हो। मिसेज मारूड ने जब ये सुना कि ये भी उसी प्लान में मिली हुई है, अर्थात लेडी विस्फोट की बिटिया भी लेडी विस्फोट के विपक्ष ही है। फिर क्या था, ये मामला आगे बढ़ता है। जब ये मामला आगे बढ़ता है तो मिलामेंट आ जाती हैं। मिलामेंट ने भी वही डिस्कस किया जो मिसेस फेनाल ने किया। फिर क्या था, मिसेज मारूड को बैठे बिठाए सारी योजनाओं का पता चल जाता है और यह सोच सुन लेती हैं कि सर रोलैंड हु इज़ गोइंग टू
marry with Lady Wishfort, he was not really Sir Roland. He is the servant of Mirabel named Whitwell. तो मैं इस प्ले को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि यह प्ले बहुत लंबा हो जाएगा और इस प्ले का फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त होता है और इस प्ले का दूसरा पार्ट हम अगले एपिसोड में करेंगे. ओके, बाय बाय.